So in the previous class we discussed about the perimeter of different two-dimensional figures. We discussed the effect of addition and multiplication on perimeter. Let's quickly revise the things. We discussed that if I am having any shape, let me suppose I am having a 5-sided figure, any polygon with 5 sides, and then I increase each side by 2 centimeters. Okay? So what will be the overall effect on the perimeter? Whatever will be the original perimeter plus 10 centimeters. So this is the effect on perimeter. Second thing was, if I multiply each side by 2, what will happen? The net effect will be whatever will be the original perimeter, the new perimeter will be 2 times the perimeter. Okay. And we also discussed this thing that whenever this question comes, for example, I'll say there is a polygon, but I'm not discussing the number of sides of the polygon. And if I'm saying that each side of the polygon is increased by 2, can you tell me what is the change in perimeter? No. We require the number of sides if you are given in case of addition. But if I am saying there is a polygon, I don't know the number of sides and each side is multiplied by 2. Can you tell me what is the new perimeter? Yes, in this case the new perimeter will again be 2 times the perimeter, 2 times the original perimeter. So in this case we don't require the number of sides. But when it is in case of addition or subtraction, the number of sides are to be needed. Okay. Now the second thing we have to discuss in this is, for example, now, for example, I am giving you a figure. Let me suppose this is a polygon. We are only discussing polygon with respect to perimeter. We will not discuss it with respect to area as of now. अब हमने perimeter में एक चीज देखा कि perimeter में अगर किसी भी polygon का side increase हो, what will be the change in its perimeter? अगर किसी का side change हो with respect to increase, with respect to multiplication. ठीक? Now the third thing is, if I am saying that I am changing the side with respect to percentage increase or decrease, with respect to percentage increase or decrease, now in this case, can I calculate what will be the change in perimeter or what will be the new perimeter? That's the third case. You're getting the point? The first case was, agar numerical increase or decrease hua. We'll write it like this. There was a polygon and what was the change? The change with respect was plus 2 or plus 3 or minus 1, minus 5, numerical increase or decrease. The second thing was with respect to multiplication or division. हमने कहा इसमें भी हम निकाल सकते हैं what was the change, इसमें भी हम निकाल सकते हैं what is the change. इसमें हम change निकाल सकते हैं only when number of sides are given. Yes or no? Only when the number of sides are given. लेकिन multiplication के केस में हम दोनों टाइम्स पे निकाल सकते हैं. When number of sides are given तब भी निकाल सकते हैं, and if number of sides are not given उस टाइम भी निकाल सकते हैं. यहाँ तक clear? Now the third case is, can I calculate the change in perimeter if the change in length or breadth is given with respect to the percentage increase or decrease? ठीक है जी? अब देख लीजिए इसमें हम कैसे proceed करेंगे. देखिए, for example, a small concept of percentage, थोड़ा सा idea मैं यहाँ पे दे दूँ. See, for example, if I say that this is a rectangle, Now the question will be this way. If I increase the length by 20%, and I increase the breadth by 30%, tell me what is the percentage change in perimeter? Now this will be the type of question that we will discuss. यहाँ तक clear? That you will be given with a figure, and in each figure you will be given कि भाई एक साइड जो इसका है वो किसी परसेंटेज से बढ़ गया या घट गया, दूसरा साइड जो है वो भी किसी परसेंटेज से बढ़ा या घटा. आपको देखना है व्हाट इज द ओवरऑल चेंज इन पेरिमीटर. क्लियर? या आपको ऐसे भी दिया जा सकता है, लेट मी सपोज दिस इज अ ट्रायंगल. ठीक? नाउ दिस साइड ऑफ ट्रायंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10%, this side of triangle is decreased by 20%, this side of triangle is increased by 30%. Can you tell me what is the percentage or simply what is the change in perimeter? इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें? समझ आ रहा है कि नहीं? यहां तक क्लियर हुआ? पहले था न्यूमेरिकल एडिशन और सब्ट्रैक्शन, दूसरा था मल्टीप्लिकेशन, और तीसरा क्या है? परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज. अब यहां देखो,
जब भी आपके केस में जनरल रूल हम याद रखेंगे, जब भी आपको पेरीमीटर में विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज निकालना होगा, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, जब भी पेरीमीटर का वर्ड यूज होगा, जब भी पेरीमीटर का वर्ड यूज होगा, मुझे बताइए क्या प्लस का ऑपरेंड यूज होगा बीच में कि मल्टीप्लीकेशन का? डू यू एवर थिंक कि मल्टीप्लीकेशन विल कम इन बिटवीन? पेरीमीटर है नहीं, पेरीमीटर मींस व्हाट? सम ऑफ साइड्स. पेरीमीटर ऑलवेज मींस, सो विल मल्टीप्लीकेशन कम इनटू बीइंग? क्या कोई भी पॉलीगन हो, क्या उसकी फॉर्मूला में कभी आप ऐसा देखेंगे कि पेरीमीटर इज इक्वल टू समथिंग विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन? हाँ, 2 टाइम्स फॉर एग्जांपल लेंथ एंड लेंथ है, इट कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स लेंथ, but there is not multiplication in between these two. I am saying whenever perimeter will be there, whenever the word perimeter will be there, इसका basic हमेशा क्या होगा? Summation. So in between the sides there can never be multiplication. हाँ, whenever there is area, उसके बीच में multiplication होगा. For example, area of rectangle is length into breadth. There is multiplication in between the two sides. But if you say what is perimeter, for example, what is perimeter of triangle? S1 plus S2 plus, tell me, is there multiplication between the sides? No. What about perimeter of a rectangle? 2L plus 2B. Again, what is between L and B? Addition. So whenever perimeter comes into effect, you will never see multiplication in between the sides. समझ आ गया कि नहीं? Now see what is the logic of percent. अब थोड़ा सा परसेंटेज एक बार यहां पर देख लेंगे कि उसका लॉजिक क्या कहेगा. ध्यान से देखिएगा. For example, if I say this is a rectangle, this is 10 centimeter and this is, yeah, let me suppose this is 40 centimeter and this is 20 centimeter. आराम से देखिएगा. This is a rectangle, 40 centimeters and 20 centimeters. The question is, if I increase its length by 10%, I'm increasing the length by 10%. So can I say 40 centimeters will become 44 centimeters if I'm increasing the length by 10%? Yes or no? And now I'm saying increase the breadth by 10%. So can I say 20 will become 22 by increasing it by 10%? Clear हो रहा है कि नहीं? Now, अगर मैं ऐसे आपको यहां पर इंडिविजुअल वैल्यूज दूं, तब आप मुझे बोल सकते हो कि सर अगर ये 40 है 10% बढ़ाने के बाद इट विल बिकम 44. अगर ये 20 है 10% बढ़ाने के बाद इट विल बिकम 22. But if I give you a general thing like this, that this is a rectangle, I don't know what is the length, I don't know what is the breadth. I am telling you increase length by 10% and increase breadth by 20%. ध्यान से सुनिएगा. दिस इज जनरल रेक्टेंगल. मैंने कहा लेंथ को इंक्रीज करो 10% और ब्रेड्थ को इंक्रीज करो 20%. नाउ द क्वेश्चन इज, कैन यू टेल मी हाउ मच विल द पेरीमीटर चेंज? द आंसर इज नो. अब देखिए क्यों. डू यू नो व्हाट्स द लेंथ? नहीं. आप उसमें 10% बढ़ा देंगे आप, बिकॉज ये देखिए जब भी वर्ड परसेंटेज का यूज होगा, परसेंटेज इज इन इटसेल्फ नॉट अ स्पेसिफिक वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं मेरे पास 2 रुपए बढ़ा दो, किसी चीज में 2 रुपए बढ़ा दो, यू नो व्हाट इज द ओरिजिनल? यू विल ऐड 2 टू इट. बट व्हेन आई से 10% बढ़ा दो, ये अपने आप में इनकम्प्लीट है, बिकॉज 10% होता है हमेशा किसी नंबर का. अब जब आपको वो नंबर ही नहीं पता, हाउ कैन यू इंक्रीज 10%? यू आर गेटिंग द पॉइंट. मैं कह रहा हूं आपसे 2 बढ़ा दो, आप कहेंगे कोई बात नहीं 2 बढ़ा सकते हैं, बट क्या मैं 10% बढ़ा सकता हूं विदाउट नोइंग द इनिशियल वैल्यू? नो. मुझे जरूरी पता होना चाहिए ये वैल्यू कितना है, तब जाके मैं इसका 10% बढ़ा सकता हूं. क्लियर हुआ कि नहीं? सिमिलरली इन दिस केस, यहां पर वैल्यूज दिए हुए हैं, यू कैन इंक्रीज द वैल्यूज. बट इस केस में क्या होगा, आपके पास एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, मैंने कहा उसकी लेंथ को 10% इंक्रीज कर दो, ब्रेड्थ को कितना इंक्रीज कर दो? 20%. क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट विल बी द चेंज इन परसेंटेज? नो. नो, बिकॉज हमें पता ही नहीं है वैल्यूज क्या. आप देख लीजिए केस नंबर सेकेंड. दिस इज अ रेक्टेंगल, दिस इज अ, आई इंक्रीज दिस बाय 10% and this by 10%, increasing length by 10% and increasing breadth by 10%. Now can you tell me what will be the change in perimeter? Yes, in this case I can say, but in this case I will not be able to say. अब देख लीजिए क्वेश्चन बहुत सिमिलर है,
कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं. बट इन फर्स्ट केस आई वॉज एबल टू से नहीं सर इसमें नहीं बता पाओगे आप व्हाट विल बी द चेंज. एंड इन दिस केस आई एम सेइंग यस आई विल बी एबल टू टेल यू व्हाट इज द चेंज. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द लॉजिक कि इस क्वेश्चन में मैंने क्यों कहा कि मुझे नहीं समझ आएगा कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन पेरीमीटर, और इस क्वेश्चन में मैंने कहा हाँ आई विल बी एबल टू टेल यू व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन पेरीमीटर. बस 2 मिनट देख लीजिए एंड देन वी जनरलाइज द थिंग्स, और उसको याद रख लेंगे, उसके बाद उस चीज की जरूरत नहीं है. देख लीजिए फॉर एग्जाम्पल केस नंबर फर्स्ट, 10 plus 20 is 30. Everyone knows this. इसमें कुछ है तो नहीं ऐसा. ठीक, मान लीजिए these two are the sides of something. मान लीजिए 2 sides हैं, इनका सम कितना है 30 है. If I am increasing this by 10% and this one by 20%, फर्स्ट केस मैंने पहले वाले को 10% बढ़ा दिया और दूसरे वाले को 20% बढ़ा दिया, और केस नंबर बी मैं पहले वाले को 20% से बढ़ा दूंगा और दूसरे वाले को 10% से बढ़ा दूंगा. आई से विल द टू इफेक्ट्स बी सिमिलर. ध्यान से देखिए ऊपर इक्वेशन क्या है 10 + 20 इज 30. मान लीजिए 2 साइड्स है आपके पास, 10 और 20 हो गया 30. मैं कह रहा हूं अगर मैं पहले साइड को 10% से बढ़ाऊं और दूसरे साइड को 20% से बढ़ाऊं, और आई डू वाइस वर्सा, मैं पहले साइड को 20% से बढ़ाऊं और दूसरे साइड को 10% से बढ़ाऊं. नाउ सी व्हाट हैपेंस. 10 का 10% कितना हुआ 1, दैट्स 11, एंड 22 दैट्स हाउ मच, सॉरी इसका 10% कितना हो गया 1, इसका 10% हो गया 2, 20% हो गया 4, सो इट्स 24. सो इफेक्ट इज हाउ मच 35. अगर मैंने पहले को 10% से बढ़ाया और दूसरे को 20% से बढ़ाया, सो द नेट चेंज विल नाउ बिकम टू 35. नाउ लेट्स टेक दिस वन. 10% में 20% बढ़ा दो कितना हो गया 12. इसमें 10% बढ़ा दो तो कितना हो गया. नाउ इज इट सेम? नो, दिस इज 35, दिस इज 34. अब देखो होता क्या है, जब मैं आपको कहता हूं ना कि ये रेक्टेंगल है, क्या आपको पता है इस साइड का वैल्यू क्या है? नहीं. क्या आपको पता है इस साइड का वैल्यू क्या है? नहीं. सो व्हाट हैपेंस इफ आई से इंक्रीज दिस बाय 10% एंड इंक्रीज दिस बाय 20%, आपको नहीं पता कौन सा वैल्यू क्या है. दैट्स व्हाई यू विल नॉट बी एबल टू से इन केस ऑफ एडिशन व्हाट विल बी द नेट चेंज. यू विल नॉट बी एबल टू से व्हाट इज द नेट चेंज. बट सी द ब्यूटी नाउ. If the things are in case of multiplication, 10 into 20 is 200. Now the things are related to each other with the help of multiplication. Case first, पहले वाले को 10 से इंक्रीज करो और दूसरे वाले को 20 से इंक्रीज करो. Let's see what happens. इसको 10% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 11, और इसका 20% कर देंगे तो that's 264. 24 into 11, 264. Now take the second case. इसको 20% बढ़ाओ, इसको 10% बढ़ाओ. इसको 20% बढ़ाओगे तो क्या आ जाएगा 12. इसका 10% बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 20. Result is again 264. Now see what happens. What I am trying to explain. कि जब दो चीजें आपस में मल्टीप्लीकेशन से जुड़ी हो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जब दो चीजें आपस में मल्टीप्लीकेशन से जुड़ी हो, आप अगर उसमें पहले को 10% दूसरे को 20% या पहले को 20% दूसरे को 10% कर देंगे, आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. यस और नो? बट व्हेन द थिंग्स आर रिलेटेड टू ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अगर आप पहले वाले को 10% दूसरे को 20, और अगर पहले वाले को 20 और दूसरे वाले को 10, द रिजल्ट इज एंटायरली डिफरेंट. गॉट द पॉइंट? अब यहां पर देख लो व्हाट इज, अब हमारे काम की चीज कहां पर है. सी, मुझे बताओ प्लस में चीजें कहां पर रिलेट होती है? प्लस में पेरीमीटर में के एरिया में? पेरीमीटर. और मल्टीप्लीकेशन में कहां पे होती है? नाउ सी हाउ आई जनरलाइज द थिंग्स. नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, दिस वाज अ कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड कि ऐसा होता क्यों है. अब देख लीजिए, देख लीजिए इंपॉर्टेंट. इफ आई एम सेइंग दिस इज अ रेक्टेंगल, अब देखें, अब आप मुझे बस आंसर बता दीजिए. दिस इज अ रेक्टेंगल, आई इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 10% एंड इंक्रीज इट्स ब्रेड्थ बाय 30%. कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द चेंज इन पेरीमीटर?
No sir, it cannot be determined. I will not be able to determine what will be the percentage change in perimeter, because perimeter के केस में रिलेशन किसका होता है, एडिशन का, और प्लस के केस में आपको वैल्यूज होने चाहिए, तब आप बता सकते हो कि पेरीमीटर कितना चेंज होगा। यस और नो? आप देख लीजिए सेम क्वेश्चन, द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 10%, breadth is increased by 20%. Can you tell me how much will be the change in area? Yes sir, we'll be able to say. अब कितना होगा वो बाद में देख लेंगे, but we'll be able to say how much is the change in area. किसकी वजह से? बिकॉज एरिया में नहीं फर्क पड़ता आप पहले को 10% से बढ़ाओ, दूसरे को 20% से, या पहले को 20% से और दूसरे को 10% से, उसमें आपको कोई भी चेंज एरिया में नहीं दिखेगा। यहां तक क्लियर? बट अब देखो क्वेश्चन आपको कहां से पूछा जा सकता है। अब अगर आप यहां देखेंगे, आई टोल्ड यू इन दिस केस यू विल बी एबल टू से, याद है इस केस में मैंने क्या कहा, नहीं बता सकते। इस केस में मैंने क्या कहा, इस केस में क्यों बता सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, सेम परसेंटेज इंक्रीज है। तो जहां पर आपको सेम परसेंटेज इंक्रीज है वहां पे आप बता सकते हैं। अगर दोनों चीजें 10-10% से बढ़ेंगी तो ओवरऑल 10% से ही बढ़ेगा। लेट्स चेक इट। 20 + 30 इज हाउ मच? 50। ठीक, बढ़ा दो इसका 10%, दिस विल बी 22। इसका 10% बढ़ा दो, आंसर इज 55। यस और नो? और कितना परसेंट बढ़ गया है, समझ, सॉरी कितने परसेंट बढ़ गया है, 10%। 50 का 10% इज 5, 55 बढ़ा। तो अगर आप दोनों चीजों को सेम परसेंटेज इंक्रीज दे देंगे तो ओवरऑल भी उतना ही परसेंटेज इंक्रीज होगा इन केस ऑफ एडिशन। नाउ सी, a plus b, if I increase this by 10%, this by 10%, overall increase will be 10%. Done. फिर से एक बार देखो, if two things are related to each other with the help of addition, if I increase the first variable by 10%, second variable by 10%, the overall increase is also 10%. But if I, in case of addition, if I increase the first by 10%, second by 20%, I cannot say what is the overall change in value. बताओ समझ आ गया कि नहीं? क्लियर हो गया? और एडिशन का केस किस चीज के साथ रिलेटेड है? पेरीमीटर के साथ। सो कैन आई से दिस फैक्ट नाउ, इफ, so can you write this down, if two variables, and then I'll show you how this is important in mensuration. If two variables are linked to each other, with the help of addition, if two variables are linked to each other with the help of addition, case number first, if the variables are increased or decreased, by the same percentage, if two variables are increased or decreased by the same percentage, then the overall increase is numerically equal, then the overall increase or decrease is numerically equal to either of the change. For example, a plus b is equivalent to c. For example, if a plus b is equivalent to c, देखो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, 2a होगा, 3b होगा, 5, इधर आगे कुछ भी लगेगा उससे फर्क नहीं होगा। आप देखो वेरिएबल्स के बीच में क्या है, एडिशन, ठीक है, दिस इज द कंडीशन। फॉर एग्जांपल a plus b is equivalent to c. Now write down, if a is increased by 20%, if a is increased by 20% and b by 20%, if a is increased by 20% and b by 20%, then if a is increased by 20% and b by 20%, then c also gets increased by 20%. Then c also gets increased by 20%. Then c also gets increased by
20%. ठीक, केस नंबर सेकंड, if A is increased by 20%, if A is increased by 20% and B by 10% and B by 10%, then the percentage increase in the value of C, then the percentage increase in the value of C cannot be determined. Then the percentage increase in the value of C cannot be determined. ठीक, अभी हम एरिया का नहीं लिखेंगे ना, तो एरिया भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, आप देख लीजिए एक बार, राइट डाउन द क्वेश्चंस. नाउ हाउ this concept can be used in your exams. Write down first question. If the length of a rectangle is increased by 5%, if the length of a rectangle is increased by 5% and its breadth is increased by 10%. If the length of a rectangle is increased by 5% and its breadth is increased by 10% and its breadth is increased by 10%, we'll stop. Calculate the percentage change in perimeter. Calculate the percentage change in perimeter. Now tell me what will be the answer for this. Cannot be determined. देखिए, चाहे वो फिगर कहे क्या है, फॉर एग्जाम्पल इसने क्या कहा, रेक्टेंगल है, चाहे ये रेक्टेंगल कहे या ये रैंडमली कोई भी फिगर कहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. पेरीमीटर जो जिस भी फिगर का हो, हमेशा वेरिएबल्स के बीच में क्या होगा, एडिशन. साइड्स के बीच में हमेशा क्या होगा, एडिशन होगा. So what happens in this case? Length of rectangle was increased by 5% and breadth was increased by, was the increase same or different? Different है, तो आप नहीं बता सकते हो कि पेरीमीटर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. As is the answer will be cannot be determined. यहां तो क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसका देखेंगे सेम चेंज वाला. ठीक है, वो लिख लीजिए. सेम क्वेश्चन, स्लाइट चेंज इन द वैल्यूज. लिख लीजिए. द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, the length of a rectangle is increased by 20%. The length of a rectangle is increased by 20%. The length of a rectangle is increased by 20% and its breadth is increased by 20%. The length of a rectangle is increased by 20% and its breadth is increased by 20% and its breadth is increased by 20%. We'll stop. Calculate the percentage change in perimeter. Calculate the percentage change in perimeter. Yes. So answer will be percentage change in perimeter will be increase of 20%. Because दोनों चीजें सेम से हुई. Now it's not necessary दो चीजें. It can be 3, 4, 5, 6, infinite. But what is the condition? कि उनके बीच में क्या होना चाहिए? एडिशन और इंक्रीज डिक्रीज सेम होना चाहिए. अगर इंक्रीज डिक्रीज उधर इधर हुआ, यू विल नॉट बी एबल टू इवैल्यूएट व्हाट विल बी द चेंज. ठीक, बट अगर परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज सेम हुआ, तो विल बी एबल टू सिंपली से कि हाँ, अगर 5% बढ़ा, पेरीमीटर भी 5% बढ़ेगा. बट अगर वो 5 बढ़ा, ये 5 गिरा, नहीं. एनी चेंज इन द वैल्यूज, यू विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट द चेंज इन पेरीमीटर. हाँ, यू नीड वैल्यूज ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ, फिर निकाल सकते हैं. ठीक है, फिर कोई इशू. नाउ राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस क्वेश्चन वाज कि मैंने आपको यहीं से कहा कि दिस वाज अ रेक्टेंगल. नाउ राइट अ क्वेश्चन ऑन ट्रायंगल. इफ ईच साइड ऑफ ए स्केलिन ट्रायंगल, सिर्फ आपको थोड़ा सा उधर उधर करने के लिए, डजंट मैटर कि कौन सा ट्रायंगल है, दैट मैटर्स. इफ ईच साइड ऑफ ए स्केलिन ट्रायंगल इज decreased by 12%. If each side of a scalene triangle
फॉर दैट मैटर डू यू नो व्हाट स्केलिन ट्रायंगल? हाँ, जिसके सारे साइड्स जो है वो डिफरेंट होंगे. ओके, इफ ईच साइड ऑफ अ स्केलिन ट्रायंगल इज डिक्रीज्ड बाय 12%, स्टॉप, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन पेरीमीटर क्विकली. 12% decrease. Yes. Calculate the percentage change in perimeter. फिर से वही, ठीक, सेम हो रहा है, हर किसी में 12% हर किसी साइड में 12% गिर रहा है. सो दैट मीन्स आपके पेरीमीटर में भी क्या हो जाएगा, 12% डिक्रीज हो जाएगा. यहां तक क्लियर? अब अगर उधर इधर होता तो नहीं होता. गॉट द पॉइंट? नाउ राइट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. In case of a pentagon, you know what's pentagon? Five-sided polygon. Okay. In case of a pentagon, doesn't matter कि अगर हमें नहीं भी पता होगा as of now. In case of a pentagon, each side is decreased by 20%. Each side is decreased by 20%. In case of a pentagon, each side is decreased by 20%. Full stop. Calculate the percentage change in perimeter. Calculate the percentage change in perimeter. Calculate the percentage change in perimeter. चलिए, done? Clear? सो दिस इज द थर्ड केस जो हमने देखा था. कल हमने देखा था कि अगर हम सिंपली इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा. आप हमें बताइए कितने साइड्स है, हम अकॉर्डिंगली आपको बता देंगे कि पेरीमीटर में कितना चेंज होगा. अब अगर मल्टीप्लिकेशन है तो विदाउट नोइंग द साइड्स हम आपको बता सकते हैं कि पेरीमीटर कितना चेंज हुआ होगा. व्हाट अबाउट परसेंटेज? परसेंटेज के केस में हमने ऐसे कहा, हमने कहा कि इफ देयर इज अ परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन केस ऑफ द साइड्स, we'll be able to evaluate the percentage change in perimeter under one condition. And what is the condition? That each change should be same. ठीक है, there should be same percentage increase or decrease in each of the cases. What happens if there is not exact increase or decrease, या कोई increase हो रहा है कोई decrease हो रहा है, तब हम at least perimeter area as of now we have not studied, but अभी हम ऐसा नहीं देख सकते. यहां तो क्लियर हो गया? ओके, नाउ जरा एक बार फिर से देखें. मेरे पास रेक्टेंगल है, यू टेल मी येस और नो. यू जस्ट गिव मी द आंसर इन येस और नो. देयर इज अ रेक्टेंगल, ईच साइड इज इंक्रीज्ड बाय 2. कैन यू टेल मी व्हाट इज द चेंज इन पेरीमीटर? येस और नो? चेंज इन पेरीमीटर. आई डोंट नो, आई डोंट रिक्वायर व्हाट इज द फाइनल वैल्यू. मुझे बताओ, क्या मैं बता सकता हूं कि पेरीमीटर कितना चेंज हुआ होगा? यस, देयर इज अ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल मतलब कितने साइड्स? 4 साइड्स. हर कोई साइड कितने से बड़ा? तो ओवरऑल कितना बड़ा होगा? 8. एक साइड 2 से बड़ा तो 4 साइड्स कितने से बढ़ेंगे? 8. सो द चेंज इन पेरीमीटर विल बी 8. अच्छा, ईच साइड इज मल्टीप्लाइड बाय 2. कैन यू टेल मी व्हाट इज द चेंज इन पेरीमीटर? यस, द चेंज इन पेरीमीटर, न्यू पेरीमीटर विल बी 2 टाइम्स ओरिजिनल पेरीमीटर. अगर ओरिजिनल पेरीमीटर P है तो नया पेरीमीटर क्या बन जाएगा? 2P बन जाएगा. इसमें भी हम इवैल्यूएट कर सकते हैं. नाउ ईच साइड इज इंक्रीज्ड बाय 10%. हर कोई साइड 10% से इंक्रीज होगा. इसमें भी बता सकते हैं कि ओवरऑल पेरीमीटर भी कितना बढ़ेगा? 10% से बढ़ेगा. यहां तक क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. सो व्हेनेवर क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पेरीमीटर आर कंसिडर्ड, अगर आपको डायरेक्टली जनरल क्वेश्चंस दिए जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू पेरीमीटर तो आपको ऐसे दिया जा सकता है. फॉर एग्जांपल, जरूरी नहीं है कि वो रेक्टेंगल कहे. अच्छा, अब अगर ऐसे है पॉलीगन, लेट्स ट्राई इट दिस वे. ऐसे करेंगे, आप क्वेश्चन लिख लीजिए वरना आपको 2 दिन के बाद फिर से भूल जाएगा. सो इट्स बेटर टू राइट इट डाउन. ठीक है, आप लिख लीजिए, वेदर और नॉट, राइट डाउन द क्वेश्चन, वेदर और नॉट द चेंज इन पेरीमीटर कैन बी इवैल्यूएटेड. The change in perimeter can be evaluated या calculated. मुझे बताओ, मैं आपको नीचे क्वेश्चंस दूंगा, मुझे बताइए क्या चेंज इन पेरीमीटर हम निकाल सकते हैं कि नहीं? यस और नो. एंड इफ यस, ऑब्वियसली यू विल टेल मी व्हाट इज द चेंज. ठीक है, नंबर फर्स्ट पॉलीगन. ऊपर लिख लीजिए आप पॉलीगन. पहले हम किस पे देखेंगे? पॉलीगन. एंड राइट डाउन ए पार्ट. ठीक,
write down A part. Each side is increased by 5. Can you tell me what will be the change in perimeter or what will be the new perimeter? Yes or no? Yes, sir. Yes or no? Yes. Yes or no? Yes. फिर से एक बार देख लीजिए. Each side is increased. Each side is increased by how many sides? I don't know about the polygon. Which side? Which polygon? When you don't know about polygon, how many sides? तो change कहाँ से निकालोगे? Sorry, sir. Done? So you'll not be able to evaluate कि what will be the change in perimeter. कल भी कहा ना, change in perimeter के लिए क्या चाहिए? Number of sides चाहिए. मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा polygon. अब polygon के कितने sides you don't know? You're getting the point. अगर मैं यहाँ rectangle लिखता तो आंसर would have been yes I know. एंड आंसर कितना होता है? इंक्रीज ऑफ 20, बिकॉज 4 साइड है, हर कोई 5 से बढ़ेगा तो निकल जाएगा. ठीक है. सेकेंड, ईच साइड इज मल्टीप्लाइड बाय 2. ईच साइड इज मल्टीप्लाइड बाय 2. हर कोई साइड 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है. पॉलीगन का केस है. मुझे बताइए, विल यू बी एबल टू डिटरमाइन व्हाट विल बी द चेंज इन पेरीमीटर? No, sir. We don't know about the sides. Yes or no? No? Sure? Yes, you will be able to evaluate twice the perimeter. मैंने कहा ना, देखो, when the things are in multiplication, you don't require the number of sides. That's but because if the perimeter is same. I am considering perimeter is P. New perimeter will be 2P. So what is the change? P. I am able to evaluate the change. So getting the point. एक हो गया कि मुझे पता evaluate ही नहीं कर पाऊंगा. Second is yes, I can evaluate. If original is P, new will be 2P. The change is P. Done? Okay. Next, each side is increased by 10%. Now tell me in this case what is going to happen. Will I be able to evaluate or not? Each side is increased by 20%. Yeah, 10%. Yes, overall 10%. डजंट मैटर जितने भी साइड्स होंगे, अगर आप हर किसी साइड को 10% से इंक्रीज करेंगे, ओवरऑल भी 10% से इंक्रीज होगा. इन दैट केस यू डोंट रिक्वायर टू अंडरस्टैंड कि आपके पास कितने साइड्स हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डायरेक्ट क्वेश्चन हैज एक बार आ चुका है, सो यू कैन एक्सपेक्ट कि कहीं बार और भी आ सकता है. रिपीटिंग वंस अगेन, पॉलीगन है आपके पास. पॉलीगन में अगर हर कोई साइड 5 से बड़ा, आप नहीं बता पाओगे कि कितना चेंज होगा. उसके लिए आपको क्या चाहिए कि कितने साइड्स हैं. ठीक. नेक्स्ट, ईच साइड इज मल्टीप्लाइड बाय 2. बोल पाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ईच साइड इज इंक्रीज्ड बाय 10%, ये भी बता पाएंगे. व्हाट इन केस, नाउ राइट डाउन केस नंबर सेकंड. दिस वाज फर्स्ट, राइट डाउन सेकंड. 6 साइडेड पॉलीगन. 6 sided polygon. Now I am telling you how many sides are there. It's a 6 sided polygon. Now you tell me, in case of a 6 sided polygon, tell me for each of these things, each of these 3, किसके लिए true होगा और किसके लिए false होगा. Will I be able to evaluate the first one? Yes. Second one? Yes, sir. Yes. Third? Yes, sir. Yes. So in either of the cases, in each of the cases, we'll be able to evaluate आपके पास कितना change हुआ है. So write it down like this: 6-sided polygon. Then this, each side is increased by 5%. Yes. Each side is multiplied by 2. Yes. And each side is increased by 10%. Yes. So in all of these cases, you will be able to evaluate how much percentage change is happening. So 6-sided figure may be considered as hexagon. Hexagon. Huh? And you know, least sided, if there is a figure, a polygon which has the minimum number of sides, that is a triangle. 3-sided figure. Well, the polygon is not in your syllabus, but I am using the polygon in a sense कि polygon is any closed figure. ठीक है. I could have also said rectangle. मैं 6-sided नहीं 4-sided polygon लिखता, या 4-sided polygon नहीं मैं rectangle लिखता, मैं square लिखता, rhombus लिखता, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Smallest polygon is 3-sided for triangle. 3-sided and it's called as a triangle. Connected. हाँ. Polygon is a closed figure and minimum sides you require to close a figure, that's 3.
then becomes a circle, infinite sides. Any shape with infinite sides is called as circle. That's also considered as a polygon. Technically नहीं कह सकते, but है. Infinite sides है, so but we don't categorize it as a polygon. चले, रैंडम एक दो क्वेश्चन लिख लीजिए, मुझे उसका आंसर बता दीजिए. लिख लीजिए. There is a rectangle. There is a rectangle. There is a rectangle whose length is increased by, there is a rectangle whose length is increased by 10 centimeters and breadth is increased by 5 centimeters. There is a rectangle whose length is increased by 10 centimeters and breadth is increased by 5 centimeters. We'll stop. If its original perimeter was 60 centimeters, calculate the new perimeter. As of now, very basic questions. ठीक है, आराम से सोच के, अभी मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ. ठीक है, एग्जाम में भी यू आर हैविंग एम्पल टाइम फॉर कैलकुलेशंस, सो डोंट हरी. एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप ये क्वेश्चन गलत करेंगे, दैट्स व्हाई आई गिव इट. टेल मी व्हाट विल बी द आंसर इन दिस केस. 75 is not the answer. So if the perimeter, original perimeter is 60. Original perimeter is 60. Okay. Then the length is 10 and 5. So it will be a total change in the total. End में तो it is an end change. 15 से total perimeter. 15 से कहाँ बढ़ेगा? लेंथ 2 होती है रेक्टेंगल, ब्रेड्थ भी 2 होती है रेक्टेंगल, एक नहीं. If this is the rectangle, this is length, this is also length. This is breadth, this is also breadth. अब देखो, it will be 90 will be the new perimeter, not 75. देखो कैसे, क्या था ओरिजिनल पेरीमीटर, आप ऐसे रख लो. मुझे बताओ चेंज क्या होगी. चेंज देखो कैसी होगी. लेंथ बढ़ा 10 सेंटीमीटर से, तो ये भी बढ़ेगा 10, ये भी बढ़ेगा 10, तो कितना लेंथ बढ़ रही है 20 से. 2 लेंथ है. ब्रेड्थ ये वाली बढ़ेगी 5, ये भी बढ़ेगी 5, 5 और 5 कितना हो गया 10. सो दैट मीन्स ओवरऑल लेंथ और ब्रेड्थ बढ़ रही है 30 से. ओरिजिनल पेरीमीटर आपका 60 था, तो नया पेरीमीटर कितना होगा 90 सेंटीमीटर. ठीक है, जज्बात में आके यूजुअली डू इट लाइक दिस. 60, 10 + 5 is 15, सो आंसर इज हाउ मच 75. बट नो, 2 लेंथ्स है, 2 ब्रेड्स है एक रेक्टेंगल में, तो एक लेंथ 10 से बढ़ेगा तो ऑब्वियसली दूसरा भी 10 से बढ़ेगा, रेक्टेंगल है. गेटिंग द पॉइंट. सो आंसर इज हाउ मच 90 centimeters and not 75 centimeters. Write down the next one. Done with this? Clear हो गया किस तरीके से, समझ आ गया ना. Write down. In case of a triangle, next, in case of a triangle, if each side is increased by 7 centimeters, if each side is increased by 7 centimeters and its original perimeter was 42 centimeters and its original perimeter was 42 centimeters, we'll stop. Calculate the new perimeter. And its original perimeter was 42 centimeters. Calculate the new perimeter. Quick. कैलकुलेशन आराम से कर लो. 63 is 7 centimeter each side, तो 3 साइड 21 सेंटीमीटर. So add 21 to it, so 63 centimeters will be the new perimeter. Either they can tell you what is the change in perimeter. If they say change in perimeter, answer would have been 21. Or they'll say what is the new perimeter. So new perimeter is 63. ये भी देख लेना चाहिए कि क्वेश्चन वाला आपसे चेंज पूछ रहा है कि फाइनल इफेक्ट पूछ रहा है. इफ फाइनल इफेक्ट इज आस्किंग दैट इज 63. ठीक है, और अगर ओरिजिनल पूछ रहा है सो इट इज 42. राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन.
Next question. In a rectangle, each of the sides is multiplied by 3. In case of a rectangle, each of the sides is multiplied by 3. आपके पास एक रेक्टेंगल है और उसका हर कोई साइड जो है वो 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फुल स्टॉप. If original perimeter is 40 centimeters, calculate the new perimeter. If original perimeter is 40 centimeters, calculate the new perimeter. शाबाश. शाबाश. What is the answer? 120. Yes. ओरिजिनल पेरीमीटर 40 था, हर किसी साइड को 3 से मल्टीप्लाई किया. हमने क्या पढ़ा अभी? अगर हर किसी साइड को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल पेरीमीटर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा. आपका 40 ओरिजिनल पेरीमीटर था, 40 into 3 is 120. If the question would have been like this, if each of the side is increased by 3, increase by 3, तो हर किसी में 3 बढ़ेगा तो 4 साइड्स में 12 पड़ेगा. In that case answer would have been 52. If each side was added by 3. समझ आ गया? But is multiplied by 3. लेकिन हमने कंडीशन कल क्या लिखा था कि अगर मेरे पास कोई भी आपके पास शेप है, उसका हर कोई साइज 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल पेरीमीटर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, ना कि 3 3 3 3 हर किसी केस में. नो, ओवरऑल पेरीमीटर विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 3. डन. राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. दीज आर द क्वेश्चंस विल प्रैक्टिस. ठीक है, वो कॉन्सेप्ट था, ये प्रैक्टिस है. राइट डाउन. देयर इज अ रेक्टेंगल whose length is increased by 10%. There is a rectangle whose length is increased by 10% and breadth is increased by 20%. There is a rectangle whose length is 10% and its whose length is increased by 10% and breadth is increased by 20%. Whose length is increased by 10% and breadth is increased by 20%. Full stop. If its original perimeter was 100 centimeters, we'll stop. Calculate. If its original perimeter was 100 centimeters, calculate the new perimeter. If its original perimeter was 100 centimeters, calculate the new perimeter. बताइए. Cannot be determined. Why? Because यहाँ पर 10% है और यहाँ पर 20% है. निकालने को आप पेरीमीटर का चेंज निकाल रहे हो, so that will not be able to calculate. So answer is cannot be determined. Very good. And write down next question. लिख लीजिए. The length of a rectangle is increased by 10%. The length of a rectangle is increased by 10% and its breadth is decreased by 10%. The length of a rectangle is increased by 10% and its breadth is decreased by 10%. Full stop. Calculate the percentage change. Calculate the percentage change in perimeter. Yes, straight away. Although 10 है, but एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है. You will not be able to evaluate. So answer again is cannot be determined. Good. Next question. The length of a rectangle. सेम क्वेश्चन है, हल्का सा चेंज है. ठीक है. आई जस्ट वॉन्ट यू टू इनकॉर्पोरेट ईच एंड एवरी चेंज ताकि एग्जाम में आपको झटका ना लगे. इसलिए द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड. द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10%. द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10% and its breadth is also increased by 10%. And its breadth
is also increased by 10%, and its breadth is also increased by 10%. Full stop. If the original perimeter was 200 centimeters, if the original perimeter was 200 centimeters, if the original perimeter was 200 centimeters, we'll stop. Calculate the new perimeter. Calculate the new perimeter. Calculate the new perimeter. Each was increased by 10%. नहीं, बताइए. Will you be able to determine its answer? हाँ, yes or no? Same percent है, same increase decrease, so you'll be able to determine कि that means इस केस में पेरीमीटर भी कितना बढ़ेगा, पेरीमीटर भी बढ़ेगा 10%. ओरिजिनल पेरीमीटर कितना था 200, तो नया कितना होगा 220. So 220 centimeters will be the new perimeter. इसमें ब्रेड्थ और लेंथ का डिफरेंट इफेक्ट नहीं लगता? नहीं, एक कंबाइंड इफेक्ट एक ही लगेगा. ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो 10 तो वो 20, नहीं, 10 तो ओवरऑल 10 ही लगेगा, जब तक इनके बीच में क्या है एडिशन. जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो अलग चीज, और मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या एसोसिएट करेंगे हम, एरिया. ठीक है, अब हम ऐसे नाउ सी इफ आई जस्ट वाइंड इट अप, मैं आपको कहूंगा कि जब भी पेरीमीटर की बात हो, ठीक, जब भी पेरीमीटर की बात हो, थिंग्स आर रिलेटेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ एडिशन. पहला चीज. दूसरा चीज, नाउ इफ देयर आर चेंज इन द साइड्स, if there are change in the sides, will the perimeter also change? Yes, if the sides are changing, the perimeter will also change. First point. Second point, now let's understand how there can be changes in the sides. ठीक, if the change in side is with respect to addition or subtraction, with respect to addition, or will you be able to tell me what is the change in perimeter? Yes, लेकिन कब? when number of sides are given, otherwise नहीं. If number of sides are given, you will be able to tell me what is the change in perimeter. The second change will be with respect to multiplication. क्या इस केस में आप मुझे चेंज बता सकते हो? Yes, इस केस में भी हम बता सकते हैं कि what is the change in perimeter. And the third thing is with respect to percentage increase or decrease. क्या इसमें भी बता सकते हो? हाँ, लेकिन इसमें कंडीशन है. कब? जब दोनों इंक्रीज हो रहे हो या दोनों डिक्रीज हो रहे हो और सेम परसेंटेज से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हो. अब अगर डिफरेंट हुआ, उस केस में आप एवेल्युएट नहीं कर सकते. यहां तक क्लियर हो गया? सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ पेरीमीटर. दिस इज वी वाइंडिंग अप हियर द बेसिक्स ऑफ पेरीमीटर. उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज एरिया एंड व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ एरिया. ऐसे ही जनरली, फॉर एग्जांपल, इफ आई इंक्रीज ईच साइड बाय 10 सेंटीमीटर्स, या इफ आई इंक्रीज द ईच साइड ऑफ ट्रायंगल बाय 10%, 20% एंड 30%, या इफ आई मल्टीप्लाई ईच ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल बाय 2, 3 एंड 4, what will be the overall change in area? Or if there is a 6-sided polygon, each of the sides is increased by 2, will you be able to tell me what is the percentage change in area? Perimeter तो बता पाया, yes or no? आपने कहा था ना अभी, मान लीजिए एक 6-sided polygon है, ठीक, 6-sided polygon के केस में अगर मैं आपको कह रहा हूं कि each side को मैं 2 से बढ़ाऊंगा, कितने से बढ़ाऊंगा? Each side is increased by 2. Will you be able to tell me what is the change in perimeter? Yes. कैसे? 2 6 बार तो हो गया, पेरीमीटर 12 से इंक्रीज होगा. बट इज इट द सेम इन केस ऑफ एरिया? एरिया के केस में मैं कैसे करूं? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल विल आई बी एबल टू कैलकुलेट व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन एरिया, या व्हाट विल बी द चेंज इन एरिया इफ ईच साइडेड ऑफ अ 6-sided पॉलीगन इज इंक्रीज बाय 2. यहां तक समझ आ गया? सो दिस विल बी द नेक्स्ट स्टेप इन दिस केस. यहां तक क्लियर? एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ अ डायरेक्ट क्वेश्चन कम्स, या आपको बहुत, क्योंकि क्वेश्चन दिखने में बहुत सिमिलर लगेगा, बट यू विल नॉट बी एबल टू इवैल्यूएट कि किस क्वेश्चन का क्या करें. जस्ट राइट डाउन 4 or 5 क्वेश्चंस फॉर योर होमवर्क एंड टुमारो टेल मी व्हाट आर द आंसर्स. ठीक है, राइट डाउन द क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन. ठीक है, अभी थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा करेंगे ताकि प्रैक्टिस आपकी यहीं पे हो जाए. लिख लीजिए, देयर इज अ 12-sided पॉलीगन, देयर इज अ 12-sided पॉलीगन, there is a 12-sided polygon and each of its sides is decreased by 10%. There is a 12-sided polygon and each of its sides is decreased by 10%. We'll stop. Calculate
the percentage change in perimeter. This is question number first. 12-sided polygon and each of its sides is decreased by 10%. Calculate the percentage change in perimeter. Next question. In a 10-sided polygon, each of the sides is multiplied by 3. We'll stop. If original perimeter was P, then calculate. If original perimeter was P, then calculate the change in perimeter. If original perimeter was P, then calculate the change in perimeter. Next question. There is a regular polygon and each of the sides is increased by 3, and each of the sides is increased by 3. There is a regular polygon and each of the sides is increased by 3. There is a regular polygon and each of the sides is increased by 3. We'll stop. Calculate the change in perimeter. 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 नहीं, regular polygon is, you write it down, नीचे एक definition लिख लीजिए. A regular polygon is a polygon. पहले लिख लीजिए ऐसे. A polygon is any closed figure. A polygon is any closed figure. So any closed figure is called as polygon. पहला point कि polygon कोई भी ऐसी figure है जो close हो, ठीक है. Second point, minimum sides required to form a polygon. Minimum sides required to form a polygon is, बताइए कितना? Is 3. Minimum sides required to make a polygon is 3. Next, a regular polygon is a polygon. A regular polygon is a polygon having equal sides and angles. एक ऐसा पॉलीगन जिसका हर कोई साइड और हर कोई एंगल बराबर, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, ये लिखना नहीं है फॉर एग्जाम्पल, ये देखना है फॉर एग्जाम्पल. सी, कैन यू टेल मी, इज दिस अ पॉलीगन? Yes or no? Yes. Closed sided figure, it's a polygon. But if you take a look at this polygon, now is this a polygon? Considering this to be closed, is this a polygon? Yes. But what is the difference between this polygon and this polygon? In this polygon, ये चारों sides बराबर है, मान लीजिए, और तो थोड़ा सा different लग रहे हैं, but मान लीजिए चारों sides बराबर है और चारों angles भी बराबर है. If this is 90, this also 90, this also 90 and this also 90. हर कोई एंगल बराबर है, हर कोई साइड बराबर है, then it classifies to be a regular polygon. तब हम इसको कह सकते हैं that it's a regular polygon. And what about this one? Do you think the sides are same? This and this side is same? Do you think this side and this side is same? No. Now since sides are different, no matter with the angles, दोनों conditions meet out होनी चाहिए. अब पहली condition ही नहीं meet out हो रही है, so that means this will be called as simply a polygon. This is simply a, ठीक है. Now the question that I had given you is, there is a regular polygon and each of the sides is increased by 3. Calculate the change in perimeter. You have to calculate the change in perimeter. So when I am writing regular polygon, does it indicate the number of sides? No. कहीं जगह लिख के नहीं है रेगुलर पॉलीगन. रेगुलर पॉलीगन में 3 साइड्स भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये आपका ट्रायंगल है, रेगुलर पॉलीगन है, मतलब तीनों साइड्स बराबर है. वी क्लासिफाई दिस ट्रायंगल एज इक्विलैटरल ट्रायंगल. ये भी आपके पास रेगुलर पॉलीगन है.
चारों साइड्स बराबर है, इसको हम स्क्वायर कहते हैं, एंड सो ऑन. एनी फोर साइडेड फिगर इज अ रेगुलर पॉलीगन? No. Any figure having same sides and equal angles, then only it classifies to be a polygon, regular polygon. Or if you are having any figure with different sides and different angles, that's called as a polygon. यहाँ तक क्लियर हो गया? Okay. Now can you tell me what is इतना तो हमने पढ़ा. Can you simply tell me what is a perimeter now? इतना पढ़ने के बाद can you simplify perimeter for me? What is perimeter? Sum of all the sides. लेकिन कौन से sides? परसों मैंने कहा sum of all sides is correct, but which sides? Boundary, ठीक है, और enclosing sides. जो आप कह रहे हो ना क्लोज्ड फिगर, जो साइड्स इसको क्लोज करने में मदद कर रहे हैं, उन्हीं का एडिशन क्लासिफाइज टू बी पेरीमीटर. फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज अ फिगर, this is A, B, C, E and F. Now can you tell me what is perimeter in this case? It's A plus B plus C plus E plus F. D will not be used in the calculation of perimeter. Although this is a side है, लेकिन enclosing side नहीं है, so it doesn't classify while we are calculating perimeters. Now can you tell me what is area? पहले दिन जो हमने डिस्कस किया था, एरिया कुछ नहीं है. अगर मेरे पास कोई भी फिगर है, ठीक, अगर मेरे पास कोई भी फिगर, ये फिगर अपने नीचे कोई जगह ऑक्यूपाई करेगा, कोई सरफेस ऑक्यूपाई करेगा, यस और नो. आप किसी भी चीज को जमीन पे रखो, ठीक है, मैंने आपको परसों भी कहा था, जब भी एरिया आ जाएगा आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? अ 2 डायमेंशनल फिगर, ठीक है. बिकॉज जब हम 3 डायमेंशनल की बात करते हैं वहां हम एरिया यूज नहीं करते. एरिया स्पेसिफिकली नहीं, वॉल्यूम तो हो गया, उसका भी एरिया होता है, बट दैट्स कॉल्ड एज कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया. खाली एरिया जब होगा, इट ऑटोमेटिकली मीन्स अ 2 डायमेंशनल फिगर. Whenever the word area is there, it means a 2 डायमेंशनल फिगर. अगर 3 डायमेंशनल फिगर होता, उसके 2 एरियाज होते हैं, एक को हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया और दूसरे को हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया. और अगर उसके साइड्स थोड़े से कर्व्ड में हो, देन वी कॉल इट एज अ कर्व्ड सरफेस एरिया. बट हमारे सिलेबस में क्या लिखा हुआ है? एरिया. सो एरिया इज ओनली फॉर विच फिगर्स? 2 डायमेंशनल फिगर्स. नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज एरिया, एरिया सिंपली मीन्स आपके पास कोई भी फिगर है, वो अपने नीचे कोई ना कोई जगह ऑक्यूपाई करेगा. दैट जगह वो जो ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एरिया. यस और नो? बेसिक रूल ऑफ मैथमेटिक्स. जब आपने पेरीमीटर पढ़ा था, ठीक, मैंने आपको क्या कहा? पेरीमीटर में हमेशा क्या इन्वॉल्व होगा? सम के केस में जब भी आपको यूनिट निकालना होगा, इट विल बी नेवर अ स्क्वायर ऑफ अ थिंग, इट विल बी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स. सब कुछ सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो पेरीमीटर भी सेंटीमीटर में ही निकलेगा. सारा मीटर में दिया हुआ है तो पेरीमीटर भी मीटर में ही निकलेगा. लेकिन एरिया के केस में व्हाट इज द यूनिट्स दैट वी आर यूजिंग? इट इज यूनिट स्क्वायर. बाय यूनिट स्क्वायर आई मीन आप सेंटीमीटर में चीजें दे दो, एरिया किस में निकलेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में. फॉर एग्जांपल, इफ लेंथ एंड ब्रेड्थ इज गिवन इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर्स, तो एरिया किस में निकलेगा? एरिया विल बी इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर. आप मुझे लेंथ और ब्रेड्थ इन टर्म्स ऑफ मीटर्स दे दो, तो एरिया किस में निकलेगा? इन टर्म्स ऑफ मीटर स्क्वायर. समझ आ गया? बट हाउ टू कैलकुलेट द एरिया? देखो, पेरीमीटर का मैंने सिंपल आपको डेफिनेशन बताया था. आप देखो साइड्स कितने भी हैं, जितने भी साइड्स हैं सबका ऐड कर दीजिए, दैट्स पेरीमीटर. बट एरिया के लिए यू शुड बी एबल टू नो व्हाट आर द डिफरेंट फिगर्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने का तरीका अलग. इफ यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, तरीका अलग. इफ यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आपके पास तरीका अलग है. सिमिलरली, इफ यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सर्कल, तरीका अलग. इफ यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रोम्बस, बिल्कुल अलग तरीका. सिमिलरली, इफ यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तरीका अलग है. और इफ यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल और सिंपली अ क्वाड्रिलेटरल, आपका तरीका अलग. अब हमारा सिलेबस यही है कि आपको फिगर दिया जाएगा और आपको फिगर में बता दिया जाएगा कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, बता दीजिए कि इसका एरिया क्या होगा. ठीक है. नाउ विल फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द फिगर. फॉर एग्जांपल, देयर इज अ ट्रायंगल. व्हाट इज अ ट्रायंगल? ठीक, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स? बिकॉज हर किसी, एक तो जनरल तरीका है एरिया निकालने का, बट कुछ ऐसे भी तरीके हैं जिनसे चीजें सिंप्लीफाई होती हैं. फॉर दैट वी शुड नो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स. ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, स्केलिन ट्रायंगल है, अपना अपना तरीका सबका है एरिया कैलकुलेट करने का. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रॉम टुमारो विल टेक द फिगर ट्रायंगल.
एक दो क्वेश्चन इसके पेरीमीटर पे, एंड आई डोंट थिंक इट विल मेक एनी प्रॉब्लम फॉर यू। पेरीमीटर आप देखो साइड क्या है तो निकल जाएगा, ठीक है। फिर पेरीमीटर और उसके बाद एरिया, सिमिलरली फॉर ईच ऑफ द फिगर्स, एंड देन विल फिनिश मेंसुरेशन। यहाँ तक क्लियर है? सो रेस्ट विल डिस्कस टुमारो इंशाल्लाह।